Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So class, today we will be starting with chapter number 5 of geography, that is primary activity. Not a difficult chapter at all. Very basic things are being taught to us in this chapter, and we will start with the chapter now. Now class, we need to know what are human activities and what is economic activity. Any activity which generates income is called as the economic activity. यानी human beings जो भी काम करते हैं to earn money, to generate income, that is known as economic activity, to lead their livelihood. So economic activities can broadly be categorized into 4: primary, secondary, tertiary, and quaternary. Okay, so of the first 3 we are totally familiar. Of the fourth one is basically related to knowledge and this kind of services, about which we'll study in detail. So we'll study about each of the economic activity in great details in this book. To start with, obviously we'll start with the primary economic activity, as the name of the chapter suggests. So अभी हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है यहाँ तक कि ह्यूमन एक्टिविटीज विच जेनरेट इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी. और इसमें से फर्स्ट ऑब्वियसली इज प्राइमरी एक्टिविटी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. We know that primary activity is something where we are directly dependent on the nature and the environment. Directly हम utilize करते हैं अर्थ के जो resources हैं और उससे हम income generate करते हैं, चाहे वो land हो, water हो, vegetation हो, building material हो या minerals हो. It thus includes hunting and gathering, pastoral activities, fishing, forestry, agriculture, mining and quarrying. You can clearly see on your screen as well. Agriculture is needless to say, we all know one of the most main primary activity. Fishing है, forestry है, pastoral activity है, hunting and gathering है, and mining and quarrying है. So इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ पे we need to just remember that primary activities are directly dependent on environment and we directly utilize the resources that are available to us on the earth and is provided to us by the nature. So we are directly using the natural resources and then creating our income. So to start with, let us first start with the first primary activity, which is hunting and gathering. We know this was the primary activity which existed from very ancient times when the human beings were just evolving. तो उनको सिर्फ hunting और gathering आती थी. This was the only way they could survive. So earliest human beings were depending on their immediate environment for their sustenance. They subsisted on animal which they hunted. Obviously, दो ही चीजों पे वो रह पाते थे, एक तो एनिमल जिनको हंट करते थे, दूसरा जो एडिबल प्लांट्स जो खाने लायक, ऐसा नहीं कि वेरी पॉइजनस और समथिंग दैट कैन नॉट बी कंज्यूम्ड. एडिबल प्लांट्स जो वो गैदर करते थे फॉरेस्ट से अपने आसपास एरिया से. अब वी नीड टू रिमेम्बर एडिबल प्लांट्स भी कौन से हैं और कौन से नहीं है, ये इनको अपने एक्सपीरियंस से ही पता चला होगा कि ये चीज जो है ये खाने लायक है या ये चीज जो है ये खाने लायक नहीं है. सो मेनली दो चीजें हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग. हंटिंग मतलब एनिमल्स को ऑब्वियसली हंट करना फॉर देयर नीड्स, वेदर इट वाज फॉर क्लोथिंग, वेदर इट वाज फॉर फूड, और एडिबल प्लांट्स को गैदर करना. तो प्रिमिटिव सोसाइटी जो है वो वाइल्ड एनिमल्स पे बहुत डिपेंड करती थी. एक्सट्रीमली कोल्ड या एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट्स जहाँ पे होते थे वहां पे लोग हंटिंग से ही सरवाइव करते थे. कोस्टल एरियाज में लोग फिशिंग करते हैं और ऑब्वियसली धीरे धीरे वी नो इन सारी चीजों में विद कमिंग ऑफ मोर टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रेस इन ह्यूमन लाइफ चेंजेस आ गए हैं. बट स्लोली एंड ग्रेजुअली एक चीज और नोटिस की गई है कि मेनी एनिमल्स आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट and that is why these hunting and all has been considered illegal, has been banned. तो बहुत सारी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई है, एंडेंजर्ड हो गई है ड्यू टू इलीगल हंटिंग. अर्ली हंटर्स जो है वो कुछ प्रिमिटिव टूल्स यूज करते थे, स्टोन, ट्विग्स, एरोज,
जिससे वो एनिमल्स को किल करते थे और बहुत लिमिटेड नंबर में किल करते थे, ओनली जितना उनको रिक्वायर्ड है. बट obviously modern times में हमें पता है with coming of guns and these sort of things, many animals are being killed and there are many other things that related to it. चाहे एनिमल स्किन को बेचना, ये सारी चीजें हैं इलीगल. इन्हीं अगर हम हिस्टोरिकल टाइम्स में थोड़ा जाएं, आफ्टर ऑब्वियसली हंटिंग एंड गैदरिंग के डेवलप होने के बाद, जस्ट एज अ स्पोर्ट और जस्ट एज समथिंग ऑफ एंटरटेनमेंट भी हंटिंग की जाती थी. तो अब ऐसा फेज आ गया कि एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड हो गए स्पीशीज, जिसके कारण इलीगल या बैन कर दिया गया है हमारे वर्ल्ड में हंटिंग. गैदरिंग एंड हंटिंग ठीक है, ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी और अलग अलग लोग इसको अलग अलग फॉर्म में प्रैक्टिस करते थे. गैदरिंग हमें पता है अभी स्टिल इट इज स्टिल बीइंग प्रैक्टिस, गैदरिंग एंड हंटिंग इन सर्टेन एरियाज. गैदरिंग जो इट इज प्रैक्टिस इन रीजन विथ हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन. ठीक है, तो ऑफन इन्वॉल्व्स प्रिमिटिव सोसाइटीज, जो अभी भी प्रिमिटिव जैसी है, जो एक्सट्रैक्ट करती हैं प्लांट्स, एनिमल्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. तो इस टाइप की जो एक्टिविटी है, इसमें एक्चुअली इन लोगों को ना ज्यादा कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए और बहुत लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, सिंपल टूल से ये लोग जो गैदरिंग है वो कर सकते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट गैदरिंग. और यहाँ पे ऑब्वियसली यील्ड पर पर्सन वेरी लो होती है, सरप्लस कोई प्रोड्यूस नहीं करता है, मेनली इट इज फॉर सबसिस्टेंस एंड कंजम्पशन. नाउ व्हेन आई से कि इट इज स्टिल प्रैक्टिस, लेट अस अंडरस्टैंड कहाँ पे ये प्रैक्टिस होती है. गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन हाई लैटिट्यूड जोन्स which include northern Canada. Now class, you all know these areas. I will just mark them again so that things are more clear to you people. ठीक है. So basically we know northern Canada, ये high altitudes वाले area है, northern Eurasia, you can see this area, and then we have southern Chile. Okay, so यहाँ पे जब हम देखते हैं regarding these areas, which one, high altitude का high latitude का मतलब क्या है यहाँ पे, हाई लैटिट्यूड का मतलब है यहाँ पे जैसे अपना 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वेटर. सो 0 से 20 इसके अराउंड जो है उसको हम लो लैटिट्यूड बोल देंगे, और जो हमारे ऊपर वाले हैं अराउंड 60s 40s के ऊपर 60s के अराउंड, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोल देंगे जो अपना एरिया है रिगार्डिंग, यू कैन से जो बेसिक एरिया है जो ऊपर की साइड है उसको हम हाई ऑल्टीट्यूड में बोलते थे. तो सदर्न चिली जो है बेसिकली अपना साउथ अमेरिका में है. इट इज नॉट मार्क्ड इन सेंस, बट यू कैन जस्ट रिमेम्बर यहाँ पे जो एरिया है हम देख सकते हैं, चिली वाला जो एरिया है यहाँ पे, इट विल ऑल्सो, यू विल सी साउथ अमेरिका में है, इट विल ऑल्सो कम अंडर the high latitude zones. अब low latitude zones का भी हम देख लेते हैं. अगर low latitude zones का हम देखें तो Amazon basin हमें यहाँ पे दिख रहा है. Then we have our tropical Africa, ये देखो mid वाले में है ना, क्योंकि इक्वेटर के आसपास है. And then we have certain parts of Australia and some parts of Southeast Asia. तो ये हमारे कौन से वाले एरिया है, वी कैन सी दीज आर द एरियाज जहाँ पे हमारे गैदरिंग होती है. अभी भी सबसिस्टेंस गैदरिंग हाई लैटिट्यूड में होती है, नदर्न कनाडा, नदर्न यूरेशिया, सदर्न चिली, और लो लैटिट्यूड्स में अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, देन वी हैव सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. सो दीज आर द एरियाज वेयर वी स्टिल सी गैदरिंग. ओके, और सबसिस्टेंस गैदरिंग होती है क्योंकि ऑब्वियसली सरप्लस प्रोड्यूस नहीं होती है. मॉडर्न टाइम्स में जो गैदरिंग है थोड़ी सी मार्केट ओरिएंटेड हो गई है और कमर्शियल हो गई है. गैदरर्स क्या करते हैं, वैल्यूएबल प्लांट्स कलेक्ट करते हैं जैसे लीव्स और मेडिसिनल प्लांट्स, बार्क्स ऑफ ट्रीज, और सिंपल प्रोसेसिंग करते हैं, उसको फिर मार्केट में बेच देते हैं, और प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स को दे यूज इट एंड देन ऑब्वियसली उसके बाद उसको बेचा जाता है. फॉर एग्जाम्पल एज इट इज स्टेटेड इन द बुक, जो बार्क है is used for quinine,
टेनिन एक्सट्रैक्ट के लिए और कोक जो लीफ सप्लाई मटेरियल फॉर बेवरेजेस, इन सब के लिए ड्रग्स, फाइबर्स, इन सब से रिलेटेड जो भी जैसे गम्स, रेजिन्स, ये सारे क्या करते हैं, ये लोग कलेक्ट करते हैं। जैसे आई सेड मेडिसिनल पर्पसेस के लिए है क्यूनाइन और स्किन एक्सट्रैक्ट, टेनिन एक्सट्रैक्ट, और इसके अलावा फाइबर्स, फैब्रिक्स, नट्स, ऑयल, ट्री ट्रंक जैसे रबर एंड गम्स, रेजिन, ये सारी चीजें जो थोड़ा ज्यादा प्रोड्यूस होने लग गई हैं, बट ऑब्वियसली इसको हम compete नहीं कर सकते ग्लोबल लेवल। इतना ज्यादा हम बोल रहे हैं कमर्शियल, बट इन टर्म्स ऑफ सब्सिस्टेंस से थोड़ा ज्यादा, बट दे कैन नॉट कम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट, क्योंकि सिंथेटिक प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिनकी क्वालिटी बेटर होती है और जिनके प्राइस लो होते हैं, तो लोग वो खरीदना ज्यादा प्रेफर करते हैं। एंड दैट इज व्हाई गैदरर्स जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाले हैं, इतना ज्यादा प्रॉस्पर नहीं कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मतलब कमर्शियल स्कीम, ठीक है। एंड हंटिंग हमें पता ही है किसी किसी सेक्शन में होती है, बट स्टिल अब बैन कर दी गई है। वेरी इंटीरियर में जो ट्राइबल ग्रुप है, दे मस्ट बी डूइंग इट फॉर देयर ओन बेसिक नीड्स, बट वैसे इट इज टोटली बैन एंड पीपल कैन नॉट डू हंटिंग illegally. If they are doing, if they are caught, obviously they have to face the consequences, क्योंकि illegal है because animal are becoming endangered and extinct। तो ये है हमारी हंटिंग और गैदरिंग जो पहले से चली आ रही है, तो चेंज हो गई थोड़ी बहुत गैदरिंग, बट पूरे हम ये नहीं बोल सकते ग्लोबल मार्केट पे compete कर सकते। जो नेक्स्ट चीज हम देखेंगे अपनी प्रिमिटिव फार्मिंग की अगर हम बात करें, या प्रिमिटिव एक्टिविटीज की अगर हम बात करें, तो अपना आ जाता है पेस्टोरलिज्म। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज पेस्टोरलिज्म, वो भी देख लेते हैं। पेस्टोरलिज्म इन नॉर्मल टर्म्स यू विल अंडरस्टैंड कि एनिमल्स को रेयर करना, हर्डिंग करना, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग एंड देन सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। ओके, तो हमें हिस्ट्री में भी पता है, जब लोगों को ये पता चला कि हंटिंग एक अनस्टेबल चीज है, अनसस्टेनेबल, आप कितना एनिमल्स को हंट कर पाओगे, उससे कितने दिन तक आप सरवाइव कर पाओगे, एंड पीपल व्हेन दे अंडरस्टूड कि इससे बेटर तो है हम इसको टेम कर लें, इनको डोमेस्टिकेट कर लें। ऐसे ही गैदरिंग का भी हमें पता है चेंज हुआ था टू एग्रीकल्चर, तो वैसे ही यहाँ पे भी हुआ। तो जब डोमेस्टिकेशन एनिमल्स की स्टार्ट की लोगों ने, तो उनको पता चला कि वी आर हैविंग सो मच ऑफ बेनिफिट, वी आर गेटिंग एनिमल प्रोडक्ट्स आल्सो एंड वी आर गेटिंग इट कंटिन्यूअसली। इट इज नॉट लाइक हंटिंग कि यू हैव जस्ट गॉट द एनिमल एंड देन यू हैव देन व्हाटएवर यू वांटेड टू डू इट विद, मतलब उसको हंटिंग करके चाहे कंज्यूम कर लिया, चाहे कुछ प्रोडक्ट आपने बेच दिया, व्हाटएवर इट इज। इनिशियली तो सिर्फ कंजम्पशन के लिए हंटिंग होती थी, बट अगर हम डोमेस्टिकेट कर ले तो हमें ये एनिमल प्रोडक्ट्स मिलते रहेंगे और इसको हमें अपना परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम मान सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो लोगों ने क्या किया, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में अलग अलग एनिमल्स जो सस्टेन करते हैं उनको डोमेस्टिकेट कर लिया, डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल फैक्टर्स। और वहाँ की जो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई थी, एनिमल रेयरिंग जो है वो भी चेंज हो गई विद टाइम्स। पहले सब्सिस्टेंस ही थी और थोड़ी बहुत बेचने के लिए काम आती थी, अब सब्सिस्टेंस लेवल और कमर्शियल बड़े लेवल पे स्टार्ट हो गई। तो हम पेस्टोरलिज्म को दो में डिवाइड कर सकते हैं, नोमैडिक हर्डिंग और कमर्शियल लाइवस्टॉक हर्डिंग। यानी हम देख रहे हैं कैसे सब्सिस्टेंस था इनिशियली, पर सब्सिस्टेंस और या थोड़ा बहुत बाहर बेचने के बाद अब कमर्शियल बड़े लेवल पे हो गया है। तो हम इसको अगर अब देखें सोर्स ऑफ इनकम लोग कैसे करते हैं, तो दो तरीके से करते हैं, नोमैडिक हर्डिंग एंड द कमर्शियल लाइवस्टॉक हर्डिंग। तो व्हाट इज नोमैडिक हर्डिंग, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले नोमैडिक का मतलब पता है, जब व्हेन पीपल आर ऑलवेज ऑन अ मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, है ना, तो उसी नाम से हम समझ सकते हैं। नोमैडिक हर्डिंग या पेस्टोरल नोमैडिज्म प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस जैसी एक्टिविटी है जिसमें हर्डर्स एनिमल्स के ऊपर हर चीज के लिए डिपेंडेंट है, चाहे वो फूड हो, क्लोथिंग हो, शेल्टर हो, टूल्स हो या ट्रांसपोर्ट। ओके, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते हैं अपने लाइफ स्टॉक के लिए, उनको उस हिसाब से कि अपने एनिमल्स को अच्छे से ग्रेज करवा सके, जिस पैस्चर लैंड में क्वालिटी ऑफ मटेरियल है फॉर ग्रेजिंग, चाहे वो ग्रास
हो या और कोई प्रोडक्ट हो और कोई टाइप के क्रॉप्स हो, तो वो उस जगह पे ले जाना पसंद करते हैं जहाँ पे वाटर की भी अच्छी अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि अगर अच्छा कंज्यूम करेंगे, अच्छा फूड इनटेक होगा, अच्छा न्यूट्रिशियस चीजें खाएंगे, तो वो लोग ऑब्वियसली जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे वो भी अच्छी क्वालिटी के होंगे। सो हर नोमैडिक ट्राइब जो है एक मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में ही जनरली रहता है, जो उनके बहुत ट्रेडिशन से चला आ रहा है उसी हिसाब से, ठीक है। जैसे वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स जो है वो अलग अलग रीजन्स में रखे जाते हैं, जैसे इन ट्रॉपिकल अफ्रीका कैटल्स जो हैं उनको बेसिकली वो सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ स्टॉक है वहां पे। सहारा और एशियाटिक डेजर्ट्स में शीप, गोट्स और कैमल रेयर किए जाते हैं। ऑब्वियसली हमें पता है अकॉर्डिंग सीजन टू सीजन एंड एनिमल्स टू एनिमल अलग अलग जगह पे अलग अलग एनिमल्स को रखा जाता है, उनको एज लाइफ स्टॉक रखा जाता है। अगर हम माउंटेनियस एरिया की बात करें, तिब्बत और एंडीज की, तो यहाँ पे याक, लामास और जो आर्कटिक एरिया है वहां पे रेनडियर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल्स। तो वी हैव अंडरस्टूड कि अलग अलग एरिया पे क्या है, अलग अलग एनिमल्स को रखा जाता है। और ये जो है ये हम क्या बात करते हैं, ये जनरली क्या होता है, अपने जो ट्रेडिशन होते हैं ना उसके हिसाब से ही ये लोग जनरली उन्हीं एरियाज पे रहते हैं, और उसके बाद वहीं से उसके आसपास ही हर्डिंग तो ऑब्वियसली नोमैडिक है तो वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। So these are basically, if we talk about these, you can say जो नोमैडिक पेस्टोरलिज्म होता है सर्टेन एरियाज में, ठीक है। तो अलग अलग एरियाज में जो अलग अलग टाइप के एनिमल्स को रखा जाता है, ओके। देन आई थिंक दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू। लामा जो है ये साउथ अमेरिकन एरिया में किया जाता है, स्पेसिफिक काइंड ऑफ एनिमल होते हैं जिसको कैमेलिड बोलते हैं, ठीक है। बाकी हमें रेंडियर पता ही है, शीप गोट पता है, हमें कैटल पता है। पेस्टोरल जो नोमैडिज्म है ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन से एसोसिएट है। हम अगर वापस मैप पे समझना चाहें इसको, सो वी कैन अंडरस्टैंड इट। You can just have a look at this map on your screen as well as the map is given in your book on page number 34. You can check it out, okay. You just have a look at it. Now this is basically associated with 3 important regions. 4 region जो है वो mainly Atlantic shores of North Africa से eastwards across the Arabian Peninsula into Mongolia and Central China. मतलब again if you see this whole area, है ना, this one. This is the complete area जिसकी अगर हम बात करें in terms of नोमैडिक जो हर्डर्स होते हैं वो वाली है। सेकंड रीजन है टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। नाउ अगेन इफ यू हैव अ लुक एट दिस प्लेस, ये जो पूरा एरिया है दिस वन, यहाँ पे भी होती है हमारी हर्डिंग। देन सदर्न हेमिस्फीयर में स्मॉल एरियाज ऑफ दिस अफ्रीका यू कैन सी अपना towards the southwest Africa and island of Madagascar. This is Madagascar. तो बेसिकली इतने एरिया पे हमारी क्या होती है, नोमैडिक हर्डिंग। अफ्रीका में, चाइना, मंगोलिया साइड, देन यूरेशिया में, नॉर्थ पोर्शन में, एंड देन सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड मैडागास्कर, ओके। तो ये हमारी हो जाती है कि किन किन एरियाज में हमारा nomadic herding जो है that is being followed, okay. So I suppose this is clear to you all, and now we move on to the next thing. So meanwhile talking about this only, जो इनका मूवमेंट होता है वो भी देख लेते हैं कि कैसे होता है। जो मूवमेंट होता है ऑफ दीज नोमैडिक पेस्टर जो पेस्टोरलिस्ट होते हैं, इनका हम देखेंगे कि मूवमेंट इन सर्च ऑफ पेस्चर्स जो है ये जनरली या तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में जाते हैं स्ट्रेट, या फिर डायरेक्शंस में जाते हैं एलिवेशन, हाई एलिवेशन से लो एलिवेशन की तरफ, यानी या हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकली फ्रॉम वन एलिवेशन टू द अदर। तो माइग्रेशन जो है जनरली फ्रॉम प्लेन एरियाज टू पेस्चर ऑन द माउंटेन्स ड्यूरिंग समर्स होती है, एंड अगेन फ्रॉम माउंटेन टू प्लेन एरियाज ड्यूरिंग विंटर्स। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसह्यूमेंस, ओके। आई जस्ट रिपीट इट, दिस ग्रुप एक्चुअली मूव फ्रॉम
plain area to mountain area during summers. Okay, and during winters they move from mountain pastures to plain area, simply because summers में mountains में अच्छा pasture available होता है, snow से covered नहीं होता है, whereas in winters में क्या होता है, because they require the colder temperature generally, तो plain area में भी ठंड तो होती है, but ample amount of pasture land is available with good grasses and good things to graze. Okay, good crops to graze. Whereas winters में क्या होता है, जो माउंटेनियस एरिया होती है वो इट इज जनरली कवर्ड बाय स्नो, सो पैस्चर लैंड कम हो जाते हैं, ग्रास लैंड अवेलेबल नहीं होते, सो दे कम डाउनस्टेयर्स, दे कम डाउन द हिल्स, तो इसीलिए वो विंटर्स में प्लेन में आ जाते हैं और समर्स में अपने माउंटेनियस मेन एरिया में चले जाते हैं। और ये पूरे जो हम बोलेंगे कि ये जो पूरी प्रोसेस होता है माइग्रेशन का, इसको ट्रांसह्यूमन्स बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे अपने पास एग्जाम्पल है ऐसे हर्डर्स के, पैस्चरिस्ट के, गुज्जर्स है, बकरवाल्स, गदीस, भुटियास जो हैं वो माइग्रेट करते हैं प्लेन टू माउंटेन्स में इन समर्स एंड प्लेन्स फ्रॉम हायर ऑल्टीट्यूड पैस्चर इन विंटर्स। ठीक है, मतलब समर्स में कहाँ जाते हैं ये, डू रिमेम्बर समर में ये माउंटेनियस एरियाज में जाते हैं और विंटर्स में ये प्लेन एरिया में आते हैं। Similarly, tundra region में जो nomadic herders है, they move from south to north in summers and from north to south in winters. यानी जो tundra region में है nomadic herders, वो क्या करते हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ समर्स में जाते हैं और नॉर्थ से साउथ की तरफ विंटर्स में जाते हैं। तो ये जो पेस्टोरलिस्ट नोमैड्स के बारे में हमने पढ़ा है, नंबर ऑफ पेस्टोरल नोमैड्स हैं ये डिक्रीज हो रहे हैं विद टाइम because of certain problems. ओके, और जो एरिया जिन पे वो ऑपरेट कर रहे हैं वो भी श्रिंक होते जा रहे हैं, क्यों कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज बन रही हैं, नए चेंजेस आ रहे हैं, जिसके कारण ये फ्रीली मूव नहीं कर पाते। इसके अलावा कंट्रीज जो है वो नए नए प्लान कर रही है, नए एरिया में ज्यादा सेटलमेंट हो रहा है, तो इनके पास जो लैंड है वो रिड्यूस हो रहा है, दैट इज व्हाई देयर नंबर इज डिक्रीजिंग, और एरिया जहाँ पे वो ऑपरेट करते हैं वो भी डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज सिंपली पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो है उनसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, नई नई पॉलिटिकल बाउंड्रीज बन रही हैं और नए सेटलमेंट प्लान हो रहे हैं अलग अलग कंट्रीज के, जिसके कारण दीज पीपल आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। Now we come to the second type of pastoralism, commercial livestock rearing। नाम से ही पता चल जाता है कि ये जो है ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में की जाती है, इसमें बहुत पैसा लगाते हैं, कैपिटल इंटेंसिव होती है। जनरली ये जो लाइवस्टॉक रेयरिंग या रैंचिंग होती है ये वेस्टर्न कल्चर्स यानी वेस्टर्न कंट्रीज करते हैं। ये लोग परमानेंट, ये लोग नोमैडिक नहीं होते हैं, परमानेंट लैंड लेते हैं, बहुत बड़े बड़े वास्ट एरियाज लेते हैं और इनको ये नंबर ऑफ उसमें डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ सेक्शन में फेंस कर देते हैं जहाँ पे ग्रेजिंग होती है। when the grass of one parcel is grazed, animal are moved to another parcel। एक साइड का ग्रेजिंग हो गई है तो दूसरी साइड पे ग्रेज करवा लेते हैं। they use modern technology, they regulate grazing, और वो बेसिकली पेस्चर एरिया पे भी ध्यान रखते हैं, पेस्चर कैपेसिटी पे ध्यान रखते हैं, स्पेशलाइज एक्टिविटी ही वो रखते हैं, विच वन टाइप ऑफ एनिमल इज रेयर। तो इसमें इंपॉर्टेंट एनिमल्स जनरली शीप, कैटल, गोट्स, हॉर्सेस वगैरह होते हैं, और प्रोडक्ट जैसे कि मीट, वूल, हाइड, स्किन जो है इनको प्रोसेस किया जाता है, फिर इनको पैक किया जाता है साइंटिफिकली और फिर वर्ल्ड मार्केट में बेचा जाता है, बाहर भेजा जाता है। सो वी कैन सी द डिफरेंस, प्रॉपर्ली ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, बहुत बड़े स्केल पे ये पेस्टोरलिज्म को, रैंचिंग को प्रैक्टिस करते हैं, लाइवस्टॉक रैंचिंग को, और फिर ये चीजों को ग्रेजिंग भी एक रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, एक एरिया फिक्स कर रखा है उससे हटके फिर दूसरे एरिया पे ले जाते हैं। एनिमल्स का अपने बहुत ध्यान रखते हैं फॉर देयर रेयरिंग, स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनिमल रखते हैं, शीप, कैटल, गोट्स या हॉर्सेस में से जनरली। फिर जो प्रोडक्ट्स निकालते हैं, चाहे वो मीट हो, वूल हो, हाइड हो या स्किन हो, उनको प्रोसेस किया जाता है, साइंटिफिकली पैक किया जाता है, फिर वर्ल्ड मार्केट में बेचा जाता है। ओके, तो ये एज आई सेड साइंटिफिक बेसिस पे ये लोग पूरी चीजें
करते हैं और मेन एम्फोसिस ब्रीडिंग पे होता है, इनका नंबर बढ़े, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट की, इनकी क्वालिटी बढ़े एनिमल्स की, लॉट ऑफ साइंटिफिक टेक्निक यूज करते हैं ये, डिजीज कंट्रोल करते हैं, हेल्थ केयर प्रॉपर रखते हैं इनकी, ताकि वो एनिमल्स अगर वो अच्छे होंगे तो प्रोडक्ट भी ऑब्वियसली अच्छे निकलेंगे, उनके नंबर बढ़ाते हैं। हमें पता है बहुत सारे तरीके, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन and increasing their number, and as they're saying breeding, genetic improvement, disease control, health care, सब चीज पे ध्यान रखते हैं। ओके, और ज्यादातर अगर हम इसकी बात करें तो कमर्शियल जो अपनी लाइफ स्टॉक रेयरिंग है, और पूरी ये कमर्शियल फॉर्म में पेस्टोरलिज्म जो है, लाइफ स्टॉक रेयरिंग, ये होती है न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, and then we have Uruguay, then we have USA। तो ये important areas है जहाँ पे, important countries है जहाँ पे ये commercial livestock जो rearing है हमारी practice होती है। and you can clearly see कि ये जो है ये western countries है, और as you all know that these are the, you can say, basic important countries जो हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। एंड ये वाली जो, लाइक दिस वन प्लेस, आई थिंक यू मे नॉट बी हैविंग दैट मच आइडिया, यूरुग्वे जो है दिस इज इन साउथ अमेरिका। ओके, बाकी हमें पता है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना कहाँ है, दीज आर ऑल द कंट्रीज दैट वी ऑलरेडी नो। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया we know where it is, then USA obviously no need to tell, and similar is the case with Argentina and the other countries। Okay, so as I said, ये अपने को बहुत कुछ समझाते हैं कि कैसे पेस्टोरलिज्म जो है ये अलग अलग फॉर्म में, और नॉट ओनली नोमैडिक टाइप में, बट इट डज एग्जिस्ट इन अदर वेज ऑल्सो। ठीक है, कमर्शियल में जब वर्ल्ड मार्केट के लिए बेचते हैं, एंड एज आई सेड कि ये जो अपनी बेसिक कंट्रीज है, ये कौन सी जो वेस्टर्न वाली कंट्रीज है वो कमर्शियल स्केल पे इसको बेचती हैं, एंड दे अर्न ह्यूज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ दिस। सो आई सपोज यू ऑल नो कि जो I've already told you, which is Uruguay, this is in South America, and Australia you all know, New Zealand की जो है अपना, it is just near Australia, अपने को US से पता ही है, and if you all know about Argentina, Argentina is again in our South America। Okay, so again I've told you in detail about these, each of these countries, so I think you will be able to even mark it on the map. We'll do it on the map whenever we need it। Okay, so this is all about pastoralism। Now after this we will be talking about the most important primary activity जो हमें पता है is agriculture। तो एग्रीकल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, एंड देन वी हैव इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव कमर्शियल वाला एग्रीकल्चर, मिक्स फार्मिंग एक्सेट्रा, है ना, और भी बहुत सारे। सो वी स्टडी अबाउट एग्रीकल्चर इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो आई थिंक आज हमने जितना भी किया है रिगार्डिंग हंटिंग, गैदरिंग, पेस्टोरलिज्म, नोमैडिक पेस्टोरलिज्म, कमर्शियल लाइवस्टॉक हर्डिंग, ये सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग टू द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड, कम बैक विद योर टॉपिक्स, वी विल डिस्कस एंड सॉल्व। So now meet you all in the next class with the same chapter, and we'll try to do the other topics। So see you all in the next video।